हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ रुचिका फ्रॉम इंग्लिश एकेडमी। आज की इस वीडियो में हम सीबीएसई द्वारा रिलीज़ किया गया क्लास 10th इंग्लिश का सैम्पल क्वेश्चन पेपर डिस्कस करेंगे। दिस इज़ फॉर द सेशन 2020-21। नाउ योर इंग्लिश क्वेश्चन पेपर इज़ डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, पार्ट ए एंड पार्ट बी। इस वीडियो में हम पार्ट ए डिस्कस करेंगे। पार्ट ए की वेटेज है 40 मार्क्स और इसमें आपको 1 मार्क के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। And before starting this video, I have an important announcement. Please follow English Academy on our social media platforms if you want interesting quizzes and other related stuff for English. Also, we have compiled a lot of stuff for students of class 10th. We have different explainer text, video lessons and MCQ quizzes for you. And you can access all this stuff free of cost. आप बिल्कुल फ्री में अपने बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी कर सकते हैं। तो इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने उस पीडीएफ का लिंक दिया हुआ है जहां पर हमने सारे रिसोर्सेज के लिंक्स कंपाइल किए हुए हैं। तो आप उस फ्री पीडीएफ को डाउनलोड कीजिए, वहां से अलग अलग लिंक्स पर जाकर अपने बोर्ड एग्जाम्स के सारे सब्जेक्ट्स की तैयारी आप फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकते हैं। नाउ लेट अस बिगिन विद डिस्कसिंग द सैम्पल क्वेश्चन पेपर ऑफ इंग्लिश पार्ट ए। तो द फर्स्ट सेक्शन इज रीडिंग सेक्शन, जिसकी वेटेज है 20 मार्क्स। रीडिंग सेक्शन का जो पहला क्वेश्चन है उसमें आपको इस पैसेज को रीड करना है। आइए पैसेज रीड करते हैं। द चॉइसेस वी मेक ऑन अ डेली बेसिस, वेयरिंग अ सीट बेल्ट, लिफ्टिंग हैवी ऑब्जेक्ट्स करेक्टली और पर्पसली स्टेइंग आउट ऑफ एनी डेंजरस सिचुएशन कैन ईदर इंश्योर आवर सेफ्टी और ब्रिंग अबाउट पोटेंशियली हार्मफुल सर्कमस्टांसेस। You and I need to make a decision that we are going to get our lives in order. Exercising self-control, self-discipline and establishing boundaries and borders in our lives are some of the most important things we can do. A life without discipline is one that's filled with carelessness. We can think it's kind of exciting to live life on the edge. We like the image of, yeah, that's me, living on the edge, woohoo. It's become a popular way to look at life. But if you see, even highways have lines which provide margins for our safety while we are driving. If we go over one side, we'll go into the ditch. If we cross over the line in the middle, we could get killed, and we like those lines because they help us keep us safe. Sometimes we don't even realize how lines help to keep us safe. I am not proud of this, but for the first 20 years of my life at work, I ignored my limits. I felt horrible physically most of the time. I used to tell myself, I know I have limits and that I've reached them, but I'm going to ignore them and see if or how long I can get by with it. I ran to doctors trying to make myself feel better through pills, vitamins, natural stuff and anything I could get my hands on. Some of the doctors would tell me it's just stress. That just made me mad. I thought stress meant you don't like what you do or can't handle life, and I love what I do. But I kept pushing myself, traveling, doing speaking engagements and so on, simply exhausting myself. Finally, I understood I was living an unsustainable life and needed to make some changes in my outlook and lifestyle. You and I don't have to be like everyone else or keep up with anyone else. Each of us needs to be exactly the way we are, and we don't have to apologize for it. We're not all alike, and we need to find a comfort zone in which we can enjoy our lives instead of making ourselves sick with an overload of stress and pressure. Now let us see कि इस passage पर based questions हमें क्या-क्या है। On the basis of the understanding of the passage, answer any 10 questions from the 12 that follow. तो आपके पास 12 questions आएंगे, उसमें से आपको कोई भी 10 attempt करने हैं, so you have a choice of 2 questions. Let us see the question 1. The reason why living on the edge has become popular is because of the, and you have to fill in the blank with the most suitable option. Options है constant need for something different, population being much younger, exhausting effort to make changes, short tendency to stay within our limits. तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या है? द रीज़न वाई लिविंग ऑन द एज। अब लिविंग ऑन द एज मीन्स रिस्क लेकर जीने की जो लोगों की चाहत है वो इतनी क्यों बढ़ गई है, क्यों पॉपुलर हो गई है, उसका क्या कारण है? ऑप्शंस है कि वो कुछ डिफरेंट करना चाहते हैं, और सेकंड ऑप्शन है कि सब लोग बहुत यंग हैं इसलिए वो ऐसा करते हैं। ऑप्शन 3 है कि वो एफर्ट्स करते हैं अपनी लाइफ में कोई चेंज लाने के लिए, और ऑप्शन 4 है
कि उनके अंदर एक स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी होती है लिमिट्स के अंदर रहने की, इसीलिए वो कोशिश करते हैं लिमिट्स को एक्सीड करने की। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए। क्यों लोग एज पर जीते हैं, रिस्क लेते हैं? बिकॉज वो कुछ अलग करना चाहते हैं। देयर इज अ कांस्टेंट नीड फॉर समथिंग डिफरेंट। ये जो अलग करने की चाहत है वही उन्हें फोर्स करती है लिमिट्स को क्रॉस करने की और लिमिट्स पर जिंदगी जीने की। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द ऑप्शन दैट बेस्ट कैप्चर्स द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पैसेज फ्रॉम द गिवन कोट्स। अब हमारे पास 4 कोट्स हैं। It's all about quality of life and finding a happy balance between work and friends. दूसरा कोट है to go beyond is as wrong as to fall short. तीसरा कोट है life is like riding a bicycle, to keep your balance you must keep moving. और फोर्थ कोट है balance is not something you find, it's something you create. तो हमें अपना आंसर सिलेक्ट करना है कि कौन सा मोस्ट सूटेबल कोट है जो इस पैसेज का सेंट्रल आइडिया हमें दे रहा है। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, दैट इज बैलेंस इज नॉट समथिंग यू फाइंड, इट्स समथिंग यू क्रिएट। क्योंकि इस पैसेज में भी हमें यही बताया जा रहा है कि हमें वर्क और रिलैक्सेशन में एक बैलेंस क्रिएट करना है, अपने आप को बहुत ज़्यादा स्ट्रेस नहीं करना, बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट नहीं करना, एक परफेक्ट बैलेंस क्रिएट करना बहुत ज़रूरी है। Question number 3, which of the characteristics are apt about the writer in the following context? I know I have limits and that I have reached them, but I am going to ignore them and see if or how long I can get by with it. अब इससे हमें राइटर का कौन सा कैरेक्टरिस्टिक पता चलता है? नेग्लिजेंट, इनडिसाइसिव, स्पॉन्टेनियस, रेकलेस, पर्पसलेस, पेशेंट। तो हमारी ऑप्शन है ऑप्शन ए 2 and 5 यानी कि इनडिसाइसिव एंड purposeless, 3 and 6 that is spontaneous and patient, 1 and 4 that is negligent and reckless, 2 and 3 that is indecisive and spontaneous. तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, नेग्लिजेंट एंड रेकलेस। ऑब्वियसली वो नेग्लिजेंट है क्योंकि वो अपनी लिमिट्स को एक्सीड करने की बात कर रहा है, रिस्क ले रहा है, और वो रेकलेस भी है क्योंकि बिना सोचे समझे वो ऐसा डिसीजन ले रहा है। Question number 4, which of the following will be the most appropriate title for the passage? Option A, much too soon. Option B, enough is enough. Option C, how much is too much. Option D, have enough to do. तो इसका मोस्ट सूटेबल टाइटल होगा ऑप्शन सी, हाउ मच इज टू मच। मीन्स आपको कब और कैसे पता लगेगा कि कितना काम अब आपके लिए ज़्यादा हो रहा है, एक्सेस हो रहा है, और आप उसे वहीं पर रोक दें और एक बैलेंस क्रिएट करें। Question number 5, the phrase potentially harmful circumstances refers to circumstances that can be। तो जब हम कहते हैं potentially harmful circumstances तो वो किस तरह के circumstances को रेफर कर रहे हैं? ऑप्शन ए certainly be dangerous, ऑप्शन बी be fairly dangerous, ऑप्शन सी be possibly dangerous, ऑप्शन डी seldom be dangerous। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, be possibly dangerous। मीन्स एक पॉसिबिलिटी है कि वो सिचुएशंस, वो सर्कमस्टांसेस डेंजरस हो सकते हैं, उनमें ये पोटेंशियल है कि वो हार्मफुल या डेंजरस हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट मेक्स द करेक्ट यूज ऑफ अनसस्टेनेबल एज यूज्ड इन द पैसेज टू फिल द ब्लैंक स्पेस। तो हमें वो वाला ऑप्शन ढूंढना है इन 4 सेंटेंसेस में जिसके ब्लैंक में अनसस्टेनेबल वर्ड बिल्कुल सही फिट होगा। In the long run, the unsustainable officials followed emergency procedures. Emergency procedures were unsustainable by the officials. Officials reported an unsustainable set of events during the emergency. Officials admit that the emergency system is unsustainable in the longer run. Now, to answer this question, you should know the meaning of unsustainable. अनसस्टेनेबल मीन्स कोई ऐसी चीज़, कोई ऐसी एक्टिविटी जिसे आप कंटिन्यू नहीं कर सकते, विच कैनॉट बी कंटिन्यूड, यू कैनॉट सस्टेन इट। सस्टेन मीन्स उसे कैरी ऑन करना। तो जिस चीज़ को आप कंटिन्यू नहीं कर सकते बिकॉज उसको कंटिन्यू करना फिजिबल नहीं है, उसे हम अनसस्टेनेबल कहते हैं। तो पहले सेंटेंस में तो वो ऑफिशियल्स को अनसस्टेनेबल कह रहा है जो कि सही यूज़ नहीं है। नेक्स्ट सेंटेंस में वो कह रहा है कि
जो प्रोसीजर्स हैं वो अनसस्टेनेबल थे बाय द ऑफिशियल्स, तो यहाँ पे ये जो बाय वर्ड है ये अनसस्टेनेबल के साथ सूटेबल नहीं है, सो दिस इज ऑल्सो नॉट द राइट आंसर। थर्ड सेंटेंस, ऑफिशियल्स रिपोर्टेड एन अनसस्टेनेबल सेट ऑफ इवेंट्स ड्यूरिंग द इमरजेंसी। ये सेंटेंस थोड़ा सा सूटेबल लग रहा है, लेकिन हम नेक्स्ट सेंटेंस भी देखेंगे बिकॉज वी नीड टू फाइंड द बेस्ट आंसर। ऑफिशियल्स एडमिट दैट द इमरजेंसी सिस्टम इज अनसस्टेनेबल इन द लॉन्गर रन। तो ये वाला जो सेंटेंस है, फोर्थ सेंटेंस, इसमें जब हम यहाँ पर अनसस्टेनेबल यूज करते हैं तो सेंटेंस की सेंस बिल्कुल सही बन रही है, क्योंकि ऑफिशियल्स ये एडमिट कर रहे हैं, ये मान रहे हैं कि जो इमरजेंसी सिस्टम है उसे ज़्यादा देर तक सस्टेन नहीं किया जा सकता। ऑब्वियसली जो सिस्टम एक इमरजेंसी को मीट करने के लिए बनाया गया है वो थोड़ी सी देर के लिए ही चल सकता है, जब तक वो इमरजेंसी सिचुएशन है। जब सिचुएशन नॉर्मल हो जाएगी तो सिस्टम भी चेंज करना पड़ेगा, एंड दैट इज़ वाई उन्होंने कहा कि ये जो इमरजेंसी सिस्टम है ये लॉन्ग रन में अनसस्टेनेबल रहेगा। तो इस सेंटेंस की बिल्कुल सेंस बन रही है, सो आंसर इज ऑप्शन डी। नाउ वी सी क्वेश्चन नंबर 7। The author attempts to dash the readers through this write-up। तो हमें ब्लैंक को फिल करना है, rebuke, question, offer aid to, offer advice to। तो इस पैसेज में ऑथर रीडर को क्या करने की कोशिश कर रहा है? ऑब्वियसली इट्स वेरी इजी, ही इज़ ऑफरिंग एन एडवाइस। वो हम सबको ये एडवाइस दे रहे हैं कि हमें एक वर्क और रेस्ट में बैलेंस क्रिएट करना, लाइफ में बैलेंस क्रिएट करना बहुत ज़रूरी है। सो ही इज़ गिविंग एन एडवाइस टू द रीडर। Next question, the author uses colloquial words such as yeah and woohoo. Which of the following is not a colloquial word? Colloquial word एक ऐसे words होते हैं जो हम अपनी common conversation में friends के साथ और एक informal chat में use करते हैं। For example, yeah और woohoo। ऐसे ही आपको बताना है कि इनमें से कौन सा word एक colloquial word नहीं है। Hooked is a colloquial word, guy, stuff, ये सब ऐसे वर्ड्स फ्रेंड्स आपस में बात करते हुए बोलते हैं। स्ट्रेस इज नॉट अ कोलोकियल वर्ड, सो आवर आंसर विल बी डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज द ऑथर मीन व्हेन ही सेज टू गेट आवर लाइव्स इन ऑर्डर? तो इस चीज का क्या मतलब है, टू गेट आवर लाइव्स इन ऑर्डर? ऑप्शन ए टू रिज्यूम आवर लाइव्स, ऑप्शन बी टू ऑर्गेनाइज आवर लाइव्स, ऑप्शन सी टू रीबिल्ड आवर लाइव्स, ऑप्शन डी टू कंट्रोल आवर लाइव्स। तो टू गेट आवर लाइव्स इन ऑर्डर का क्या मतलब है? इसका आंसर है टू ऑर्गेनाइज आवर लाइव्स। हमारी लाइव्स जैसे जैसे चल रही है, कभी हम इधर जाते इधर भागते इधर भागते इधर भागते, कन्फ्यूजन में है, इतना सारा काम है करने के लिए लेकिन टाइम कम है, तो हम अपने आप को एग्जॉस्ट करते हैं, अपनी लिमिट्स को स्ट्रेच करते हैं। वो सब नहीं करना, लाइफ को समेटना है, उसे ऑर्गेनाइज करना है, एक ही दिशा में चलना है डिसिप्लिन के साथ। सो टू गेट आवर लाइव्स इन ऑर्डर मीन्स टू ऑर्गेनाइज आवर लाइव्स। Question number 10. Choose the option that correctly states the two meanings of outlook as used in the passage. तो इस पैसेज में आउटलुक वर्ड के दो मीनिंग्स यूज हुए हैं, हमें इन 5 मीनिंग्स में से वो 2 मीनिंग्स ढूंढने हैं। A person's evaluation of life, a person's experiences in life, a person's point of view towards life, a person's regrets in life, a person's general attitude to life। तो हमारी आंसर की ऑप्शन है ऑप्शन ए जिसमें 1 and 4 है, ऑप्शन बी जिसमें 2 and 3 है, ऑप्शन सी जिसमें 3 and 5 है, ऑप्शन डी जिसमें 4 and 5 है। तो इसको आंसर करने के लिए अगर आपको कोई भी एक ऑप्शन पता है कंफर्म्ड, तो आप उसके साथ बने हुए कॉम्बिनेशंस में से देख सकते हैं कि कौन सा सबसे सूटेबल है। अब इसमें देखिए जो 5th ऑप्शन है, अ पर्सन्स जनरल एटीट्यूड टू लाइफ, ये तो हमें पता ही है कि इसे आउटलुक कहा जाता है। आउटलुक मीन्स आपका क्या एटीट्यूड है लाइफ की तरफ। तो 5 के साथ हमारे पास 2 ऑप्शंस, एक है 3 and 5 और एक है 4 and 5। तो 3 स्टेटमेंट क्या है, अ पर्सन्स पॉइंट ऑफ व्यू टुवर्ड्स लाइफ, और 4 है अ पर्सन्स रिग्रेट्स इन लाइफ। अब रिग्रेट्स को हम आउटलुक नहीं कहते, तो 3 and 5 इज द मोस्ट सुटेबल ऑप्शन। आवर आंसर विल बी ऑप्शन सी, 3 and 5। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। The author explains the importance of discipline and boundaries in our lives using the example of। तो ऑथर इनमें से किस चीज़ का एग्जाम्पल लेकर हमें ये बताते हैं कि लाइफ में डिसिप्लिन और बाउंड्रीज की बहुत इंपॉर्टेंस है। रोड एक्सीडेंट्स, ट्रैफिक रूल्स, लाइंस ऑन द हाईवे और सेफ ड्राइविंग।
इसका आंसर तो बहुत सिंपल है, आंसर है ऑप्शन सी। वो कहते हैं कि हाईवे पे जो लाइंस लगी हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती हैं, क्योंकि वो हमें बताती हैं कि हमें उन लाइंस के बीच में ही चलना है और वो एरिया हमारे लिए सेफ है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। व्हाट इज़ द मैसेज कन्वेड इन द लास्ट पैराग्राफ ऑफ द पैसेज? लव व्हाट यू डू, लव योरसेल्फ टू लव अदर्स, बी द बेस्ट वर्जन ऑफ योरसेल्फ, बी योरसेल्फ। तो हमें बताना है कि जो पैराग्राफ का लास्ट पैसेज है उसमें हमें क्या मैसेज दिया गया है। आंसर है ऑप्शन सी, बी द बेस्ट वर्जन ऑफ योरसेल्फ। तो अपने आप को किसी के साथ कंपेयर मत कीजिए और ये मत सोचिए कि आपने किसी और की तरह बनना है। आप जैसे हैं वैसे ही रहिए, वैसे ही खुश रहिए और उसी में एक्सेल कीजिए। अब चलते हैं क्वेश्चन 2 पर। इसमें हमें एक और पैसेज दिया गया है। लेट अस रीड दिस पैसेज। The UN's 2017 International Year tells that sustainable tourism is an important tool for development, most importantly in poor communities and countries. Today, sustainability, environmental, social and economic, is increasingly recognized as the benchmark for all tourism business. As noted by the UN World Tourism Organization, 57% of international tourist arrivals will be in emerging economies by 2030. The various tourism terms are defined as follows. नीचे ये टेबल दिया हुआ है जिसमें सारी टूरिज्म टर्म्स की डेफिनेशंस दी गई हैं। इको टूरिज्म, एथिकल टूरिज्म, जियो टूरिज्म, प्रो पुअर टूरिज्म, रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म और सस्टेनेबल टूरिज्म। इसके बाद आगे चलते हैं। बेस्ड ऑन द डेटा कलेक्टेड बाय अ सर्वे बाय ट्रैवल ब्यूरो, द फॉलोइंग मार्केट प्रोफाइल ऑफ एन इको टूरिस्ट वॉज कंस्ट्रक्टेड। एज है 35 से 54, although age varied with activity and other factors such as cost. Gender है 50% female, 50% male. Next है education, 82% were college graduates. A shift in interest in ecotourism from those who have high levels of education to those with less education was found, indicating an expansion into mainstream markets. Household composition, no major differences were found between general tourist and experienced ecotourist. Party composition, a majority 60% of experienced ecotourism respondents stated they prefer to travel as a couple, with only 15% stating they prefer to travel with their families and 13% preferring to travel alone. Experienced ecotourist is tourist that has been on at least one ecotourism oriented trip. Trip duration, the largest group of experienced ecotourists, that is 50%, preferred trips lasting 8 to 14 days. Expenditure, experienced ecotourists were willing to spend more than general tourists, the largest group. Important elements of the trip. Experienced ecotourist, top 3 responses were wilderness settings, wildlife viewing, hiking, trekking. Motivations for taking the next trip. The 2 responses were enjoy scenery, nature, new experiences and places. Now we have to answer any 10 questions based on the passage from the 12 questions that are given to us. Let us see which questions are there. Question number 1. In the line dash recognized as the benchmark, the word benchmark does not refer to what? तो हमें बताना है कि इनमें से क्या चीज़ का मतलब benchmark नहीं है। A basis for something, ये benchmark होता है। The criterion required, ये भी benchmark होता है। The ability to launch something new, ये benchmark नहीं होता। A standard point of reference, ये भी benchmark होता है। So our answer is option C. Question number 2. The World Tourism Organization of the UN in an observation shared that emerging economies of the world will gain 50% of their annual profits from international tourists. Countries with upcoming economy shall see maximum tourist footfall from all over the world in the next decade. A large number of international tourists in 2030 will be from developing countries. Barely any tourist in the next decade shall travel from an economically strong nation to a weak nation. तो इसका आंसर है ऑप्शन बी. Countries with upcoming economy shall see maximum tourist footfall from all over the world in the next decade. तो उन्होंने बताया था कि जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, अपकमिंग इकोनॉमीज़ है, वहाँ पे मैक्सिमम टूरिस्ट जाएगा अगले डेकेड में. Question number 3. One of the elements that is important to eco-tourists on trip is wild and untouched surroundings, cultural exchanges, car and bus rides, fully furnished flats. तो eco-tourists को अपने ट्रिप्स पर
क्या एलिमेंट इम्पॉर्टेंट है? आंसर है ए, दे वुड प्रेफर वाइल्ड एंड अनटच्ड सराउंडिंग्स। ये चीज़ उन्होंने अपनी प्रेफरेंसेस में जो लास्ट में ऑप्शंस आई थी उसमें बताया हुआ था। आइए एक बार देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए उन्होंने बताया था कि इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स क्या हैं। एक्सपीरियंस्ड इको टूरिस्ट को क्या इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स चाहिए? वाइल्डनेस सेटिंग्स, तो यही यहाँ पर दिया हुआ है, वाइल्ड एंड अनटच्ड सराउंडिंग्स, ये वाइल्डनेस सेटिंग्स ही हुआ। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चूज द ऑप्शन दैट लिस्ट द करेक्ट आंसर्स फॉर द फॉलोइंग। आशा मैथ्यू, an NRI, loves animals and wishes to travel to places that safeguard their rights and inculcate awareness of their rights. What kind of tourist is she? Gurdeep Singh from UK is an environmental scientist and has always chosen to travel to places that are examples of symbiotic relationship between man and nature. What kind of tourist is he? Options हैं, ऑप्शन ए 1 is eco tourist, 2 is geo tourist, ऑप्शन बी 1 is ethical tourist, 2 is geo tourist, ऑप्शन सी 1 is sustainable tourist and 2 is pro poor tourist, ऑप्शन डी 1 is geo tourist and 2 is a responsible tourist। इसके आंसर के लिए जो हमें टूरिस्ट की अलग अलग डेफिनेशंस दी गई थी इस चार्ट में, हमें उसको देखना पड़ेगा। यहाँ पे आपको अलग अलग तरह के जो टूरिस्ट हैं उनकी क्या फीचर्स हैं उसके बारे में पता चलेगा और तभी आप इसका आंसर आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो हम अपने टूरिस्ट की जो डिटेल्स हमें दी गई हैं वो पढ़ते हैं। उन्होंने बताया है कि आशा मैथ्यू एनिमल लवर है और वो ऐसी जगहों पर जाना चाहती है जहाँ से उसे एनिमल्स के राइट्स की अवेयरनेस मिलती है। और जो गुरदीप सिंह हैं वो एनवायरमेंटल साइंटिस्ट हैं, तो वो ऐसी जगहों पर जाना चाहते हैं जहाँ पर वो एनवायरनमेंट से रिलेटेड चीज़ें देख सकें, जहाँ पर मैन एंड नेचर के बीच में एक रिलेशनशिप फॉर्म होता है। तो हम कह सकते हैं कि आशा मैथ्यू एक एथिकल टूरिस्ट है, वो एनिमल लवर है, और गुरदीप सिंह एक जियो टूरिस्ट हैं। So our answer is option B. Now we see question number 5. Based on your understanding of the passage, choose the option that lists the inherent qualities of geotourism. तो हमारे पास ऑप्शंस क्या हैं? showcases adventure sports, promotes landscape appreciations, promises luxurious travel, includes being environmentally responsible, believes in commercializing forest, initiates donations for underprivileged. हमारी ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए 1 and 2, ऑप्शन बी 5 and 6, ऑप्शन सी 2 and 4 और ऑप्शन डी है 3 and 5। तो इनमें से कौन सी दो ऑप्शंस जियो टूरिज्म की इनहेरेंट क्वालिटीज़ हैं? आंसर है ऑप्शन सी, दैट इज 2 and 4, प्रमोट्स लैंडस्केप एप्रिसिएशंस एंड इंक्लूड्स बीइंग एनवायरमेंटली रिस्पॉन्सिबल। जो जियो टूरिस्ट हैं वो ऐसी क्वालिटीज़ रखते हैं तभी वो जियो टूरिज्म से रिलेटेड जगहों पर जाना चाहते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। इन द मार्केट प्रोफाइल ऑफ एन इको टूरिस्ट द इंफॉर्मेशन ऑन जेंडर इंडिकेट्स दैट ऑप्शन ए फीमेल इको टूरिस्ट वर मोर देन मेल इको टूरिस्ट, द एक्टिविटी प्रेफरेंसेज वर वेरिड इन फीमेल्स एंड मेल्स, द चॉइस ऑफ थिंग्स टू डू ऑन अ ट्रिप वर क्वाइट सिमिलर फॉर बोथ द जेंडर्स, मेल इको टूरिस्ट व फ्रीक्वेंट ट्रैवलर्स। तो हमें बताना है कि इको टूरिस्ट की प्रोफाइल में कौन सी इंफॉर्मेशन सही है। आंसर रहेगा ऑप्शन बी, द एक्टिविटी प्रेफरेंसेस व वेरीड इन फीमेल्स एंड मेल्स। ये चीज़ हमें यहाँ पर देखने को मिलती है, क्लियर डिफरेंसेस बेस्ड ऑन एक्टिविटी व फाउंड, यानी कि मेल और फीमेल में एक्टिविटी से रिलेटेड बिल्कुल क्लियर डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द एजुकेशन एस्पेक्ट इन द मार्केट प्रोफाइल ऑफ इको टूरिस्ट रिवील्ड दैट मेन स्ट्रीम मार्केट ट्रेंड्स वर पॉपुलर विद अंडर ग्रेजुएट्स, इको टूरिस्ट वर ओनली दोज हु हैड बेसिक एजुकेशन, मेन स्ट्रीम मार्केट्स वर पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशंस फॉर एजुकेटेड इको टूरिस्ट, इको टूरिज्म वॉज नो मोर लिमिटेड टू द स्मॉल ग्रुप ऑफ हाईली एजुकेटेड ट्रैवलर्स। तो जो एजुकेशन सेक्शन है उसमें हमें कौन सी इंफॉर्मेशन मिलती है इनमें से? और इसका आंसर है ऑप्शन डी। उसमें पता लगता है कि अब सिर्फ हाईली एजुकेटेड ट्रैवलर्स ही नहीं हैं जो इको टूरिज्म करते हैं, लेकिन जो कम एजुकेटेड लोग हैं वो भी इको टूरिज्म करने में इंटरेस्टेड हो रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। अकॉर्डिंग टू द सर्वे कंडक्टेड बाय द ट्रैवल ब्यूरो, द टोटल परसेंटेज ऑफ एक्सपीरियंस्ड इको टूरिस्ट हु डिड नॉट प्रेफर टू ट्रैवल अलोन was
60%, 75%, 15% और 13%। तो जो इको टूरिस्ट हैं जो अकेले ट्रैवल नहीं करना चाहते उनकी परसेंटेज कितनी है? आंसर है ऑप्शन बी 75%। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द सर्वे वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल ड्राइविंग फोर्सेस लीडिंग एक्सपीरियंस्ड टू इको टूरिज्म टू इन्वेस्ट इन न्यू ट्रिप्स वाज सेटिंग अप वर्क स्टेशंस इन न्यू प्लेसेस। तो इस क्वेश्चन को वेरीफाई करने के लिए हम इस चार्ट पर चलते हैं जहाँ पर हमें बताया गया था कि पार्टी कॉम्पोजिशन क्या है। तो यहाँ पर दिया हुआ है कि जो एक्सपीरियंस्ड इको टूरिज्म वाले रिस्पोंडेंट्स हैं उसमें से 60% तो कपल की तरह ट्रैवल करना चाहते हैं और 15% फैमिलीज़ के साथ ट्रैवल करना चाहते हैं। जो दोनों को जब ऐड कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 75%। दैट इज़ आवर आंसर। 75% don't want to travel alone. Now we see the next question. According to the survey, one of the most powerful driving forces leading experienced ecotourism to invest in new trips was setting up workstations in new places, the chance to go camping in the wild, competing with other ecotourists as frequent travelers, the opportunity to travel to new places. तो इनमें से कौन सा जो फीचर है वो सबसे ज़्यादा प्रमोटिंग है जिसकी वजह से इको टूरिस्ट नए ट्रिप्स पर जाना चाहते हैं? इसका आंसर है ऑप्शन डी, दी अपॉर्चुनिटी टू ट्रैवल टू न्यू प्लेसेस। इसकी रेलेवेंस हमें कहाँ से मिलती है? हम यहाँ से कोरिलेट करके चेक कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए जो मोटिवेशन है फॉर टेकिंग द नेक्स्ट ट्रिप, न्यू एक्सपीरियंसेस और प्लेसेस। सो दिस इज द आंसर दैट वी हैव सिलेक्टेड। They want to go to new places. They want to travel to new places. Next question number 10. Choose the option that lists statements that is not true. Economically backward countries will benefit from sustainable tourism. The tourism business currently recognizes sustainability as an important factor. Emerging economies will receive negligible international tourists in the near future. The sustainability factor in tourism is a significant means for development. तो आपको बताना है इनमें से कौन सी ऑप्शन सही नहीं है। आंसर है ऑप्शन सी, इमर्जिंग इकोनॉमीज विल रिसीव नेग्लिजिबल इंटरनेशनल टूरिस्ट इन द नियर फ्यूचर। बल्कि ऑपोजिट है आंसर। उन्होंने बोला है कि इमर्जिंग इकोनॉमीज में सबसे ज़्यादा इंटरनेशनल टूरिस्ट आएगा इन द नियर फ्यूचर, इन द नेक्स्ट डेकेड। क्वेश्चन नंबर 11 है, द सर्वे क्लियरली शोड दैट द एज रेंज ऑफ इको टूरिस्ट, ऑप्शन ए, रिमेन द सेम फॉर द चॉइस ऑफ टूरिस्ट अट्रैक्शंस टू विजिट, changed with the monetary requirements for the trip, fluctuated due to male-female ratio, was constant across various features of the trip। तो जो एज रेंज है उसमें क्या चेंजेस आते हैं? आंसर है ऑप्शन बी, एज रेंज चेंज हो जाती है विद द मॉनेटरी रिक्वायरमेंट्स ऑफ द ट्रिप। क्वेश्चन नंबर 12, who is not an experienced eco tourist? Option A, the person who has traveled as an eco tourist once earlier, the person who has yet to travel even once as eco-tourist, the person who is a regular eco-tourism enthusiast and traveler, the person who is not regularly traveling on eco-tourism trips। तो इसका आंसर वेरी ऑब्वियस ऑप्शन बी, जिसने अभी तक एक बार भी इको टूरिस्ट की तरह ट्रैवल नहीं किया है वो एक एक्सपीरियंस्ड इको टूरिस्ट नहीं है। अब चलते हैं हमारे थर्ड क्वेश्चन पर। ये लिटरेचर सेक्शन से है। तो अब लिटरेचर सेक्शन की वेटेज है 10 मार्क्स, जहाँ पे आपको 1 मार्क के क्वेश्चंस आएंगे। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन 3 है उसमें आपको ये एक्सट्रैक्ट पढ़ना है और फिर जो क्वेश्चंस आएंगे उन्हें फॉलो करना है। क्वेश्चन 3 में आपके पास ऑप्शन है ए या बी, दो आपके पास आरटीसीज हैं, रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट, उसमें से आपने कोई भी एक अटेम्प्ट करना है। ये जो ए पार्ट है ये है मैडम्स राइड्स द बस का एक पैसेज। सडनली शी वॉज स्टार्टल्ड बाय अ वॉइस। Listen, child, said the voice, you shouldn't stand like that. Sit down. Sitting down, she looked to see who had spoken. It was an elderly man who had honestly been concerned for her, but she was annoyed by his attention. There's nobody here who's a child, she said haughtily. I have paid my 30 paise like everyone else. The conductor chimed in, oh sir, but this is a very grown-up madam. Do you think a mere girl could pay her own fare and travel to the city all alone? Valli shot an angry glance at the conductor and said, I am not a madam, please remember that, and you have not yet given me my ticket. I remember, the conductor said, mimicking her tone. Everyone laughed and gradually Valli too joined in the laughter. तो ये जो पैसेज हमारे पास आया है ये तब का है जब वल्ली बस राइड ले रही होती है।
अब इसी पे बेस्ड हमारे पास 5 क्वेश्चंस आएंगे, 1 मार्क का हर क्वेश्चन है और हमने उन्हें अटेम्प्ट करना है। पहला क्वेश्चन है, हाउ डिड वल्ली फील व्हेन द एल्डरली मैन एक्सप्रेस्ड कंसर्न दैट शी वाज स्टैंडिंग? ऑप्शन ए रादर शॉक्ड, ऑप्शन बी समवट हैप्पी, ऑप्शन सी फेयरली डिस्प्लीज्ड, ऑप्शन डी क्वाइट एम्बैरेस्ड। तो हमें बताना है कि हमारा सही आंसर क्या रहेगा। अब इस क्वेश्चन में आप देखिए कई बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं ऑप्शन ए, सी और डी के बीच में, लेकिन आपको ध्यान से आंसर को आइडेंटिफाई करना होगा। और इसके लिए आप एक बार पैसेज भी देख सकते हैं कि जब वल्ली को उस आदमी ने ऐसे बोला तो वल्ली ने कैसे रिएक्ट किया। वल्ली ने देखा कि कौन बोल रहा है, फिर उसने देखा कि एक एल्डरली मैन है, वो उसके लिए कंसर्न था, लेकिन वल्ली वॉज एनॉयड बाय हिज अटेंशन। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन सी, फेयरली डिस्प्लीज्ड। वल्ली डिड नॉट वांट दैट समवन शुड डिस्टर्ब हर, और वो कह रही थी कि वो छोटी बच्ची नहीं है, वो अपना ध्यान खुद से रख सकती है। क्वेश्चन नंबर 2 है, चूज द ऑप्शन दैट लिस्ट द सेट ऑफ स्टेटमेंट्स दैट आर नॉट ट्रू अकॉर्डिंग टू द एक्सट्रैक्ट। Valli was travelling without a guardian. The conductor was bullying Valli. Valli was nervous in her interactions. Valli was a child passenger. Valli followed the elderly man's advice. Valli's response to the elderly man was respectful. It took Valli some time to participate in the jocular conversations. तो हमें बताना है कि इसमें से कौन से स्टेटमेंट्स ट्रू नहीं हैं। ऑप्शंस हैं 2, 3, 4, 5, 6, 7, 3, 5, 7, 2, 3, 6। तो अगर हमें कोई भी एक स्टेटमेंट मिल जाती है जो हमें पता है कि ट्रू नहीं है, तो हम बाकी की भी ढूंढ सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए जो स्टेटमेंट 3 है, वल्ली वॉज नर्वस इन हर इंटरेक्शंस, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था, वो बहुत कॉन्फिडेंट थी, तो ये तो ट्रू नहीं है। अब 3 के साथ कौन से कॉम्बिनेशन हैं? 2, 3, 4। 4 है, वल्ली वॉज अ चाइल्ड पैसेंजर, ये तो ट्रू है, इसलिए ऑप्शन ए आंसर नहीं हो सकता। नेक्स्ट कॉम्बिनेशन 3 के साथ है 3, 5, 7। 5 है, वल्ली फॉलोड द एल्डरली मैन्स एडवाइस, ये भी ट्रू है, इसलिए ये भी आंसर नहीं हो सकता। तो ऑप्शन सी भी आंसर नहीं हो सकती, बी भी आंसर नहीं हो सकती, तो आंसर है ऑप्शन डी। इसमें कौन सी स्टेटमेंट्स है? सेंटेंस 2, द कंडक्टर वॉज बुलिंग वल्ली, ये भी ट्रू नहीं है। सेंटेंस 6, वल्लीज रिस्पॉन्स टू द एल्डरली मैन वॉज रिस्पेक्टफुल, ये भी ट्रू नहीं है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। पिक द ऑप्शंस दैट करेक्टली क्लासिफाई फैक्ट्स एंड ओपिनियंस ऑफ द स्टूडेंट्स बिलो। अब यहाँ पर 4 स्टूडेंट्स हैं और इनके कुछ ओपिनियंस हैं, हमें बताना है कौन सी स्टेटमेंट फैक्ट है और कौन सी स्टेटमेंट एक ओपिनियन है। आई थिंक द कंडक्टर शुडंट हैव अलाउड वल्ली टू बोर्ड, ये इसकी ओपिनियन है। आई फील दैट वल्ली वॉज बीइंग इररिस्पॉन्सिबल, ये भी इसकी ओपिनियन है। लेट्स नॉट फॉरगेट दैट वल्ली वॉज अ पेइंग पैसेंजर लाइक अदर्स, ये एक फैक्ट है। ओह कम ऑन, शी वॉज जस्ट आउट फॉर एन एडवेंचर वॉजंट शी, ये भी एक ओपिनियन है। तो हमारा आंसर है ऑप्शन डी। फैक्ट है सिर्फ थर्ड स्टेटमेंट और ओपिनियन है 1, 2, 4। तो 1, 2 और 4 की जो स्टेटमेंट्स है वो ओपिनियन है और 3 की स्टेटमेंट फैक्ट है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विच वर्ड डज चाइम्ड इन नॉट कॉरस्पॉन्ड टू? तो कौन से वर्ड का मतलब चाइम्ड इन नहीं है? ऑप्शन ए इंटरवीन्ड, ये चाइम्ड इन है। इंटरप्टेड, ये भी चाइम्ड इन है। इंटरसेक्टेड चाइम्ड इन नहीं है। इंटरजेक्टेड भी चाइम्ड इन है। इंटरसेक्टेड मीन्स कट करना, तो आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चूज द कैरेक्टरिस्टिक डिस्प्लेड बाय द कंडक्टर व्हेन ही एड्रेस्ड वल्ली एंड डिक्लेयर्ड दैट शी कुडंट बी अ मियर गर्ल। जब कंडक्टर ऐसे बोलता है तो उसका कौन सा कैरेक्टरिस्टिक हमें देखने को मिलता है? इनकरेजमेंट, इंडल्जेंस, एम्बैरेसमेंट, अथॉरिटी। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, इंडल्जेंस। वो कंडक्टर है जो वो वली के एक्टिविटीज़ में इंटरेस्ट ले रहा था और इसीलिए वो ऐसे कमेंट करता है। तो अब हमने मैडम रीच द बस के 5 क्वेश्चंस देख लिए हैं। तो अब जो सेकंड चॉइस है क्वेश्चन नंबर 3 में, वो एक पैसेज है जो ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया से लिया गया है। The baker or bread seller of those days had a peculiar dress known as the kabai. It was a single piece long frock reaching down to the knees. In our childhood we saw bakers wearing shirt and trousers which were shorter than full length ones and longer than half pants. Even today anyone who wears a half pant
which reaches just below the knees, invites the comment that he is dressed like a padder. अब इस पे बेस्ड क्वेश्चंस देखते हैं. Choose the answer that lists the correct option about the recording of the baker's monthly accounts. यहाँ पे आपके पास 4 इमेजेस हैं और इसमें से आपको बताना है कि उन टाइम्स में गोवा में बेकर का जो अकाउंट है वो किस तरह से लिखा जाता था. तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, दैट इज ऑप्शन 3. वॉल के ऊपर बेकर का रिकॉर्ड लिखा जाता था, मंथली रिकॉर्ड, और उसके हिसाब से उसकी पेमेंट की जाती थी. तो हमारा आंसर है ऑप्शन सी. नेक्स्ट क्वेश्चन. When the writer says baking was indeed a profitable profession in the old days, he means that baking is not as popular in Goa currently. Bakers have chosen to adopt other professions. Baking as a job isn't as gainful as it used to be. Baker's goods were of a better quality in earlier times. तो इसका आंसर है ऑप्शन सी. बेकिंग एज अ जॉब इज़ नॉट एज गेनफुल एज इट यूज टू बी. तो वो ये कहते हैं कि ओल्डन डेज में बेकिंग एक बहुत ही प्रॉफिटेबल प्रोफेशन था. इसका मतलब है कि आज की डेट में बेकिंग इतना प्रॉफिटेबल प्रोफेशन नहीं है जितना कि ओल्डन डेज में हुआ करता था. क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं. द स्टेटमेंट दैट इज ट्रू अबाउट पेमेंट कलेक्शन अकॉर्डिंग टू द पैसेज. द बेकर रिसीव्ड पेमेंट ऑन अ डेली बेसिस. द बेकर वॉज पेड फॉर हिज सर्विसेज एट द एंड ऑफ द मंथ. The baker insisted that customers pay before the month end. The baker chose to receive payment any day of the month. इसका आंसर है ऑप्शन बी. उसे एंड ऑफ द मंथ में पेमेंट मिलती थी. The kabai was a peculiar outfit as it was a tight-fitting apparel, too colorful, made of unsuitable materials, a dress-like attire. तो इसका आंसर है ऑप्शन डी. It was a dress-like attire. जैसे ट्यूनिक होती है, एक सिंगल ड्रेस होती है, ऐसा कबई होता था और जब मैन उसे पहनते थे तो वो बहुत ही पेक्यूलियर और स्ट्रेंज लगता था. नेक्स्ट क्वेश्चन. द एक्सट्रैक्ट यूजेस द फ्रेज इनवाइट्स कमेंट्स. विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस इज इनकरेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द वर्ड इनवाइट्स. ऑप्शंस है ट्रबल, प्रेयर, गेस्ट, एप्लीकेशंस. इनमें से कौन सा वर्ड इनवाइट के साथ नहीं यूज हो सकता. आंसर है prayers. You can invite troubles, you can invite guests, you can invite applications, you cannot invite prayers. So our answer will be option B. Now we see next question number 4. Read the extracts given below and attempt any one by answering the questions that follow. तो अब हमारे पास 2 पोएट्री के एक्सट्रैक्ट्स हैं और हमने उनमें से कोई भी एक को अटेम्प्ट करना है. पहला एक्सट्रैक्ट है. बट ही इज लॉक्ड इन अ कंक्रीट सेल, हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स, स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, इग्नोरिंग विजिटर्स. ही हियर्स द लास्ट वॉइस एट नाइट, द पेट्रोलिंग कार्स, एंड स्टेयर्स विद हिज ब्रिलियंट आईज एट द ब्रिलियंट स्टार्स. इसके अब क्वेश्चंस देखते हैं. द फैक्ट दैट द टाइगर इज स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज टेल्स अस दैट ही इज रेस्टलेस, रेकलेस, रिसिलियंट, रेवलेंट. आंसर इज ऑप्शन ए. ही इज रेस्टलेस, इसीलिए वो अपने केज में इधर से उधर घूम रहा है. क्वेश्चन नंबर 2. व्हाट इज द राइम स्कीम ऑफ द गिवन स्टैंजास. इसका आंसर है ऑप्शन डी. ए बी सी डी, ए बी सी बी. राइम स्कीम एक बार डिस्कस भी कर लेते हैं. सेल इज ए, बार्स इज बी, केज इज सी, विजिटर्स इज डी, नाइट इज ए, cars is B, eyes is A, stars is again B. It rhymes with cars. So A B C D, A B C B. This is the rhyme scheme of the stanzas given to us. Question number 3. These stanzas bring out the contrast between zoos and cities, strength and weakness, freedom and captivity, visitors and patrolling cars. Answer है option C, freedom and captivity. Question number 4. What is the caged tiger not likely to say to the visitors? Stop staring, set me free, join me, go away. इनमें से कौन सा स्टेटमेंट वो जो पिंजरे में बंद टाइगर है वो विजिटर्स को नहीं कहेगा. आंसर है ऑप्शन सी, जॉइन मी. वो ऐसा विजिटर्स को नहीं कहेगा क्योंकि वो खुद वहाँ पर खुश नहीं है. नेक्स्ट क्वेश्चन. द टाइगर्स ब्रिलियंट आईज रिवील दैट ही होप्स टू बी फ्री एंड इन द वाइल्ड समडे, is looked after well and is nourished and healthy, enjoys staring at the bright stars each night, is well rested and hence wide awake. तो इसका आंसर है ऑप्शन ए.
द टाइगर होप्स टू बी फ्री एंड इन द वाइल्ड समडे, इसलिए उसकी आईज ब्रिलियंट है। अब देखते हैं नेक्स्ट इसका जो चॉइस है, ये पैसेज कौन सा है, ये भी एक पोइट्री का पैसेज है। आई सॉ इट गो merrily bouncing down the street and then merrily over, there it is in the water, no use to say, oh there are other balls, an ultimate shaking grief fixes the boy as he stands rigid, trembling, staring down all his young days into the harbour where his ball went। अब इस पे बेस्ड हमारे पास क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, द पोएट यूजेस द बॉल एज अ सिंबल ऑफ द बॉयज सेंस ऑफ एडवेंचर, केयर फ्री चाइल्डहुड डेज, ability to bounce back, extended family। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, केयर फ्री चाइल्डहुड डेज। तो वो जो बॉल है वो सिंबल है उसके बचपन के दिनों का। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। द पोएट फील्स दैट देयर इज नो पॉइंट कंसोलिंग द बॉय एज, ऑप्शन ए इट वुड गिव हिम फॉल्स होप, ऑप्शन बी ही माइट डिमांड फॉर अ न्यू बॉल, ऑप्शन सी इट माइट डिस्ट्रेस हिम फर्दर, ऑप्शन डी व्हाटएवर ही हैज लॉस्ट इज इररिट्रीवेबल। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, व्हाटएवर ही हैज लॉस्ट इज इररिट्रीवेबल, और इसीलिए पोएट को लगता है कि उसे कंसोल करने में कोई फायदा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3, द वर्ड हार्बर डज नॉट मीन व्हाट। तो इनमें से कौन सा वर्ड का मीनिंग हार्बर से सिमिलर नहीं है। पोर्ट इसका मीनिंग हार्बर ही है, पायर इसका मीनिंग भी हार्बर ही है, डॉक का मीनिंग भी हार्बर ही है, कार्गो का मीनिंग हार्बर नहीं होता। कार्गो तो वो सामान होता है जिसे ट्रांसपोर्ट किया जाता है। तो आंसर है ऑप्शन डी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, मेरिली ओवर देयर इट इज इन द वाटर, द डैश हियर इज मेंट टू कन्वे। तो इस डैश का क्या मतलब है। सम फेमिलियर एक्सपीरियंस, a feeling of excitement, a sense of unexpected interruption, some thoughtful moments। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, a sense of unexpected interruption। जब उसकी बॉल ऐसे दौड़ती दौड़ती जाकर पानी में गिर जाती है तो उसे एकदम से लगता है कि जो उसकी लाइफ बड़ी ही स्मूथ चल रही थी वो अचानक से इंटरप्ट हो गई क्योंकि उसकी पोजेशन उससे दूर हो गई। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, द वर्ड दैट डज नॉट इंडिकेट अ फिजिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ सॉरो इन द बॉय इज वर्थलेस, शेकिंग, ट्रेम्बलिंग, रिजिड। तो इनमें से कौन सा वर्ड जो उस लड़के में हमें देखने को मिल रहा था, जो उसके सौरों को, उसके दुख को इंडिकेट कर रहा था, उनमें से कौन सा एक्सप्रेशन उससे रिलेटेड नहीं है। आंसर है ऑप्शन ए, वर्थलेस। शेकिंग, ट्रेम्बलिंग, रिजिड तो उस लड़के की फिजिकल अपीयरेंस में देखने को मिल रहा था। वर्थलेस इज द आंसर। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये है ग्रामर सेक्शन से। ग्रामर सेक्शन की टोटल वेटेज है 10 मार्क्स। इसमें जो पहला क्वेश्चन है दैट इज क्वेश्चन 5, कंप्लीट द चूज द करेक्ट ऑप्शंस टू फिल इन द ब्लैंक्स टू कंप्लीट द नोट अबाउट द वांगला फेस्टिवल ऑफ मेघालय। तो आपकी जितनी भी ग्रामर टॉपिक्स की नॉलेज है उस पर बेस्ड आपके पास एक पैसेज आएगा और उसमें कुछ ब्लैंक्स होंगे जिन्हें आपको फिल करना है। पैसेज है द वांगला फेस्टिवल ऑफ द गारो इन मेघालय, असम एंड नागालैंड। ये है एक ब्लैंक। It is a post-harvest festival dash the end of the agricultural year. It is popularly known as the 100 Drums Festival. During the signature dance, the leading warrior dash with synchronized dance steps and specific hand-head movements. अब जो पहला ब्लैंक है उसकी ऑप्शंस है is important, are an important, was the important, is an important। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी। The Wangla festival is an important festival for the Garo in Meghalaya, Assam and Nagaland. It is a post-harvest festival dash the end of the agricultural year, being celebrated for marking, celebrated to mark, celebrated to marking, being celebrated for mark, celebrated to mark. It is a post-harvest festival celebrated to mark the end of the agricultural year. During the signature dance, the leading warrior leads the youngsters with synchronized dance steps, is led the youngsters, was leading the youngsters, has leads the youngsters। आंसर है ऑप्शन ए, leads the youngsters with synchronized dance steps and specific hand head movements। तो आपको ये तीनों ब्लैंक्स के आंसर्स मैंने बता दिए हैं। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चूज द करेक्ट ऑप्शंस टू फिल इन द ब्लैंक्स टू कंप्लीट वीनूज नरेशन। अब यहाँ पे एक कॉमिक स्ट्रिप दी हुई है। इसी कॉमिक स्ट्रिप को उन्होंने एक पैराग्राफ में भी लिखा है और उसमें 3 ब्लैंक्स हैं। हमें इन 3 ब्लैंक्स को सूटेबली फिल करना है। I saw Supandi standing in the field. When I dashed to him there,
he dash he was trying to win a Nobel Prize. I was confused and inquired how standing in the rice field would help him do so. He stumped me by saying that he dash won Nobel Prizes had all been outstanding in their fields. Now let us see the options for these blanks. जो पहला blank है उसके लिए options है exclaimed what he was, told him what he was, asked him what he was, says to him what he was. तो यहाँ पर ऑप्शन सी हमारा आंसर है, क्योंकि जो नरेटर हैं उन्होंने वेनु से कुछ पूछा. आइए इसे ब्लैक में फिल करके देखते हैं. I saw Supandi standing in the field when I asked him what he was doing there. तो आंसर इज ओके. He dash he was trying to win a Nobel Prize. इसका ब्लैंक देखते हैं. He ordered that, he refused that, he questioned that, he replied that. He replied that. He replied that he was trying to win a Nobel Prize. I was confused and inquired how standing in the rice field would help him do so. He stumped me by saying that he dash won Nobel Prizes had all been outstanding in their fields. इसके ब्लैंक की ऑप्शंस देखते हैं. He has heard that people who has, he was hearing that people who were, he had heard that people who had, he did hear that people who had. आंसर है ऑप्शन सी. He had heard that people who had. He stumped me by saying that he had heard that people who had won Nobel Prizes had all been outstanding in their fields. तो ये आपकी जो एक्सरसाइज थी ये रिपोर्टेड स्पीच से थी, ये रिपोर्टेड स्पीच से थी. और अब हम आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर. Fill in the blanks by choosing the correct options for any 4 of the 6 sentences given below. तो आपके पास 6 sentences हैं और आपको उनमें से कोई भी 4 sentences को attempt करना है. पहला sentence है you dash consult the thesaurus if you need groups of synonyms for those words. पहला sentence है you dash consult the thesaurus if you need groups of synonyms for those words. You had to, you need to, you used to, you might. आंसर है you might. यानी कि तुम thesaurus कंसल्ट कर सकते हो अगर तुम्हें उन वर्ड्स के लिए synonyms चाहिए. सेकेंड सेंटेंस everybody dash keen to participate in the upcoming नुक्कड़ नाटक. Everybody are, everybody has, everybody is, everybody were. आंसर is C. Everybody is. Every के साथ हम is यूज करते हैं सिंगुलर. Next sentence, the good news is that dash volunteers dropped out this month than the last 2. Fewer, less, few, a little. Answer will be option A, fewer. The good news is that fewer volunteers dropped out this month than the last 2 months. Next sentence, it was a dash historic day for the organization when dash honor was bestowed upon its employees. It was a historic day for the organization when an honor was bestowed upon its employees. So our answer will be option A. यहाँ पे a आएगा, यहाँ पे an. Next sentence, at this time tomorrow we dash our project details to ma'am. Are presenting, shall be presenting, have been presenting, will have presenting. Answer is shall be presenting. Future continuous tense. Next question, the Komodo dragon dash follow its prey until it will eventually die due to its venomous bite. Options है must, will, could, may. Answer है will. The Komodo dragon will follow its prey till it will eventually die due to its venomous bite. And with this we come to an end of this video जहाँ पर हमने सैम्पल क्वेश्चन पेपर के पार्ट ए को डिस्कस किया. आई विल बी बैक विद अनदर वीडियो जहाँ पर हम सैम्पल क्वेश्चन पेपर के पार्ट बी को डिस्कस करेंगे. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड वंस अगेन आई लाइक टू रिमाइंड यू दैट please follow English Academy on the social media platforms if you want interesting stuff related to English. Thank you.